Hello, my dear students. Welcome back to the session and welcome to the Brainipedia Skills YouTube channel. My name is Anand and I teach quant and logical reasoning for banking, SSC, and railways exams. I welcome all my viewers, all my students, all my dear students who are watching this video. And very good morning, very good afternoon, and very good evening to all of you, all my students, right? So guys, as you all know that we have started a series of videos on SBI PO mains exam and going with the same series of the videos, we are back with the another video. Hope so you guys are watching the previous videos and we are going to continue the series. And if you have any doubt or any specific thing in your mind that you want me to make a video on that particular topics, please do let us know. We definitely going to make the video, make the content for you guys, right? What we want a part of like a part in the success story of yours, right? So if you have anything in your mind related to SBI PO mains exam, if you need a specific video, right? So please do let us know. Definitely we are going to cover up that particular topic, right? So let's start the session, guys. As you know, in the previous video, I will share my screen first, and in the previous video, I have shared you that we have like I have shared you the planning and the strategies, right? Now, again, in the previous video, I'm talking about the previous to previous video, but in this particular video, we are going to talk about the profit loss and discount chapter. In the very last video, we have started this chapter already, right? If you haven't watched that video, please go and watch that video first, and then come back to this. And in the series of videos in the first few weeks first week we are going to do the basics, right? Basics of all the topics. Again, now we know this in PO mains exam, data analysis is a part of mathematics, right? So that will brings different type of cascades and different type of questions related to DIs. So again, the topics now, the basic topics like percentages, profit and loss, ratios, and all these topics are going to be very vital and necessary. And based upon that also we are covering like जैसे कि आप अगर पिछले सेशंस को आप फॉलो अप करो तो मैं क्वेश्चंस भी ऐसे ले रहा हूँ जिसमें कि रेशियोज और परसेंटेजेस और प्रॉफिट लॉस तीनों के तीनों तीनों का इम्प्लीमेंटेशन एक सेम क्वेश्चन में आपको दिखाई दे so that you can get more about these from this particular sections, right? So let's begin the session, guys, all of you. And if you are watching this video for a very first time, please do like, subscribe the channel, and this is the only motivation we have. And again, I'm telling you, if you are preparing for SBI PO mains exam, do let us know if you have certain specific topic in your mind, and if you want a specific topic कि इस पे आप वीडियो बनाओ, definitely our team will going to make a video on that particular topic, right? So let's begin the session, all of you, right? लेट्स सी अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है बेटा, सो डू वॉच दैट वीडियो. हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन छोड़ा था मैं आपको दिखा देता हूँ. दिस वाज द लास्ट वेरी लास्ट क्वेश्चन, राइट? इसकी इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा. सो डू वॉच द वीडियो एंड यू कैन गेट हाउ टू सॉल्व this type of questions, right? Now let's move to the next question, guys. Again, I'm starting this session from the new so let's start the next question, right? This is the second question of the session. Again, profit loss and discount we can cover up in these two videos. Again, जो वीडियो की लेंथ है ना, हम काफी शॉर्ट रख रहे हैं सो दैट कि तो आप लाइक आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सके हम लोग, राइट? सो इन विद द हेल्प ऑफ दीज वीडियोस, तो आपको टाइम भी कम देना पड़ेगा और आपको बेनिफिट भी ज्यादा मिलेगा थ्रू आवर वीडियोस. सो दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग इट शॉर्ट. Let's read this question, guys, and tell me. Again, you can pause the video. And again, if you're preparing for SBI PO mains exam, so आपको basics पता होंगे. But again, now everything start from the basics. कैलकुलेट DI में data analysis में the only thing you have to be focused on basics part, right? If basics की clarity होगी, those questions can be done easily, right? उन questions को भी हम like solve करेंगे upcoming sessions में. Again, date has been announced, right? I think मई में एग्जाम होने वाला है आपके मेंस का. So again, accordingly, we are going to prepare ourselves so that we can get maximum of our sessions. So let's start doing this question, guys, all of you. Question says,
A man sells three articles, one at a loss of 10%, another at a profit of 20%, and the third one at a loss of 25%. If the selling price of all the three is same, again these are questions are very easy. Again मैं बोल रहा हूँ ना आपसे कि अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है, सो अगेन योर बेसिक्स आर स्ट्रॉन्ग, बट हमें उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है और उसको रिवाइज करना है, इस वजह से हमने सेशंस की वीडियोस रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, राइट। सो इट सेज आपको पहले 10% का लॉस हुआ है, तीन आर्टिकल है, फर्स्ट, सेकंड एंड थ्री आर्टिकल्स, राइट। पहले क्या पूछा है, बाद में हम देखते हैं, पहले क्या पूछा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल थ्री आर्टिकल्स आर सेम। पहले तो अगेन कोई नंबर कोई प्राइस नहीं गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम रेशियो का फॉर्म यूज कर सकते हैं। अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू ना कि कैसे इंप्लीमेंटेशन, परसेंटेज से रेशियो, रेशियो से परसेंटेज, परसेंटेज से प्रॉफिट एंड लॉस, कैसे चीजें साइमल्टेनियसली चलती है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये कैलकुलेट में आपको हेल्प करेंगी। तो क्या बोला गया है कि वन एट ए लॉस ऑफ 10%, तो मान लो कि क्या क्या दिया हुआ है कि, अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, छोड़ो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये मैं अरेज कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड। मान लो आपके पास तीन आर्टिकल हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, और एक में आपका सीपी होगा, दूसरे में आपका सेलिंग प्राइस होगा, तो ये आपका रेशियो में ना, रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। तो रेशियो में अगेन ना मुझे ज्यादा लगता नहीं है कि इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अगर आपको 10% का लॉस हुआ है तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, तो सीपी अगर 10 है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 9, राइट। सिमिलरली सेकंड वाले पार्ट में 20% का प्रॉफिट है, तो 20% यानी 1/5, 1/5 को मतलब फाइव, पांच की चीज है, तो आपने बेची कितने में है, 6 में है। थर्ड में 25% का लॉस है, तो मतलब चार की चीज आपने बेची कितने में है, 3 में, राइट। अगेन दीज आर द थिंग्स यू कैन डू इट, राइट। अब यहाँ पे बोला क्या है, क्या गया है आपसे, द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल थ्री आर्टिकल्स आर सेम, मतलब जो सेलिंग प्राइस है बेटा वो तीनों ही आर्टिकल्स का सेम है, राइट। So again now if you are going to say this first, second and third, these are the three articles, इनका प्राइस हमें सेम करना है, टेक द एलसीएम। एलसीएम इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड, जिससे कि हम ये तीनों प्राइस को, तीनों वैल्यूज को सेम बना सकते हैं। ये मेथड है करने का बेटा, ये दिस इज द वे ऑफ डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगेन जब मैं बेसिक से अगर करवा रहा होता, आई विल एक्सप्लेन हाउ कैन वी डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बाय यूजिंग लाइक नॉमिनल स्टेप्स, जिसे हम कह देते हैं बेसिक स्टेप्स। बट ये ना एक शॉर्टकट अप्रोच है बाय विच वी कैन मेक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इजियर इन फ्रंट ऑफ अस, राइट। तो आगे क्या है इसमें कि आपके 9, 6 और 3 है, इसका क्या करना है आपको, इसको तीनों को सेम करना है। सो वी कैन टेक द एलसीएम, एलसीएम ऑफ 9, 6, 9, 6 एंड 3 विच इज गोइंग टू बी 18, राइट। अगर 18 है, एंड दैट इज द एवरेज ना, बिकॉज आपसे पूछा क्या गया है कि ऑल थ्री आर सेम, फाइंड हाउ मच परसेंट इज देयर एवरेज सीपी इज लोअर देन और हायर देन देयर एवरेज एसपी, राइट। अगेन आपके पास कितना आ गया, 18 आ गया, तो 18 बनाने के लिए आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेट्स चेंज द कलर। अगर 18 बनाना है आपको, 18 करना है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो सीपी पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका सीपी कितना हो जाएगा बेटा, सीपी हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा आपका कितना, 24, राइट। दीज आर द सीपीज। अगर यहाँ पे देखें तो ये भी 18 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा, मतलब हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो तीनों ही केसेस में सेम है, राइट। फाइन, नाउ इट सेज एवरेज सेलिंग प्राइस, तो एवरेज सेलिंग प्राइस तो आपका यही हो गया बेटा, एवरेज जो सेलिंग प्राइस है दैट इज गोइंग टू बी 18 ओनली। अगर तीनों को डिवाइडेड बाय 3 करो, 18 ही आएगा। अगर आप इसकी बात करो, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, 20, एंड दैट इज गोइंग टू बी 35, 35, 35, 35, 35 and 34, that is going to be 35 and 24, which is going to be 59, and 59/3 ये होगा इसका एवरेज, ठीक है, एवरेज ऑफ सीपी। मैं लिख देता हूं यहाँ पे एवरेज ऑफ सीपी, राइट, दैट विल बी द एवरेज ऑफ सीपी। अब आपको पूछा क्या गया है कि जो सीपी है, जो आपको परसेंटेज फाइंड करना है किसका, एवरेज सीपी लोअर देन और हायर देन। तो अगर आप डिफरेंस देखो ना, तो डिफरेंस बिटवीन 59/3 माइनस 18/3, 18/1, मतलब आपको जो एवरेज ऑफ सीपी है उसका डिफरेंस एवरेज ऑफ एसपी से कंपेयर करना है। दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, 5/3 गाइस, राइट, 5/3 ये डिफरेंस है। बट इसको हमें कैलकुलेट करना है किसके किसके फॉर्म में, हमें कैलकुलेट करना है इसको परसेंटेज के फॉर्म में। सो 5/3 और किसके बेसिस पे, देन एसपी, एसपी कितना है, 18 इंटू 100, राइट। परसेंटेज कैलकुलेट करना है बेटा, ध्यान रखना। दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, दैट इज गोइंग टू बी, अगर देखा जाए, दैट इज गोइंग टू बी 5/54 इंटू 100, राइट। सो समथिंग अराउंड मेरे हिसाब से जो आना चाहिए,
कितना कितना हो सकता है, अगर हम मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो दैट इज गोइंग टू बी 9 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा आंसर, राइट। सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑप्शन से हम क्लिक टिक कर सकते हैं, राइट। दैट विल बी द मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आंसर अगर होते हैं तो ऑप्शंस मैंने इसलिए नहीं दिया है, सो दैट वी कैन फाइंड द अप्रोक्सीमेट आंसर्स। अगर अप्रोक्सीमेट है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे दैट इज गोइंग टू बी समथिंग अराउंड 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, राइट। एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.9 something, and if you're going to multiply it by 5, that is going to be 9 point something something, right? So that it will be the right answer. Hope so you have got this question right. अगर कोई doubt है then please ask me in the comment section. I will definitely going to tell you कि अगर कोई doubt है then we will see it and we will going to find it out कि क्या doubt थे आपके, right? Now let's see the next question guys. Next question all of you. Next question, right? Again, you can pause the video and you can do this calculation. A pet shop owner sells two puppies at the same price. On one, he marked a profit of 20%, and on the other one, he suffered a loss of 20%. Find his loss or gain percentage on the whole transaction. Again, it's a very easy question, na, right? Again, we can make, they have made two type of transaction. So we have a CP and we have a selling price. तो इन द फर्स्ट केस ही गॉट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, तो कह सकते हैं 5 से 6 हो गया सेलिंग प्राइस। एंड दूसरे पे 20% का लॉस हुआ है तो 5 से 4 हो गया, राइट। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज, तो यहाँ पे देखें तो 25 आपका सेलिंग प्राइस और 24 का आपका सॉरी 25 का आपका कॉस्ट प्राइस और 24 का आपका सेलिंग प्राइस, राइट। अगेन यू कैन फास्ट फॉरवर्डेड द वीडियो एज वेल, अगर आपको लाइक बोर फील हो रहा है। अगेन I'm just recording for the each of the my student now. If you feel something like that is not important for you, you can fast forward the video and you can move to the next questions, right? So it says two perfect okay, one mistake we have done here. He says same price पे sell किया ना बेटा, two puppies at the same price, right? तो हमें selling price same करना है। selling price same करने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी हमें 2 और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 into 3, that is going to be how much guys? This is going to be, the new values are going to be 10, 15, that is going to be 12 and 12, right? Selling price same कहा था ना, selling price same कहा था, that's why we have done the calculation. So that is going to be how much? 24, and that is going to be how much? 25. Again both the numbers are going to be the same, but हमें same करना जरूरी है, right? Hope so guys you are getting the point ना, क्या मतलब है इन चीजों का, right? सही किया ना हमने, हाँ ठीक है, सही किया है। फाइन। सो इट सेज कि हमें लॉस या प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो हमें 1 रुपए का लॉस हुआ है ओवर 1/25 इंटू 100, दैट इज गोइंग टू बी कितना? 5। तो -4% का क्या है आपके पास? लॉस है। That will be the right answer, right? So guys, if you have any doubt in this particular question, again you can ask me in the comment section. I definitely going to respond there, right? Fine. So let's see the next question, guys. The next question is, next question. So here is the next question, all of you. A merchant brought two transistors which together cost him 480, right? He sold one of them at a loss of 15% and other one at a gain of 19%, right? If the selling price of, again both question is same, so I will give you by your own. If you just calculate the answer and do let me know in the comment सेक्शन में। आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। दो क्वेश्चन हमने इससे रिलेटेड कर लिए हैं, सो यू गाइस इट्स टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो कि आपका आंसर क्या आया है, राइट। नाउ गाइस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन सेज कि a manufacturer makes a profit of 15% by selling a color TV for rupees this much. If the cost of manufacturing is increases by 30% and the price paid by the retailer is increases by 20%, find the profit percent made by the merchant, right? Again ना, I don't think so कि यहाँ पे जो ये प्राइस दिया है ना 5750 इज गोइंग टू बी यूटिलाइज, राइट। हम कर भी सकते हैं बट आई डोंट थिंक सो कि हमें करना चाहिए इसे। बट लेट्स सी ना, लेट्स सी। इट सेज कि मैन्युफैक्चरर मेक्स प्रॉफिट कितने का है? 15% का प्रॉफिट है। सो कैन आई से 100 से सीपी अगर 100 रहा होगा
तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कितना रह गया होगा, सेलिंग प्राइस इज 115। सो मैं क्या कह सकता हूँ इसको 20:23 में कन्वर्ट कर लूँ, राइट। अगेन ना, व्हाई आई एम प्राइमरली फोकसिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, राइट। अगेन here we are using the concepts of ratio na, and ratios are going to be useful when we are solving the data analysis, Caslet and DIs, right? Again all are the same thing, but unme jaake ye cheeze use hone wali hain. So that's why I am just covering up these type of questions so that we guys are going to be very much comfortable in order to solve those questions easily. Now we have this particular ratio. Now it says कि cost of manufacturing, मतलब ये CP ही मान लो, इसका 30% इंक्रीज हो जाता है। 30% इंक्रीज होने का मतलब है 26 हो जाएगा। और एंड द प्राइस पेड इन रिटेलर, मतलब इसका कितना हुआ, 20% से 20% इज 20% इज 4.6, हाँ 2.3 4.6, ठीक है। 4.6 का मतलब कितना, 27.6, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट मेड बाय द मैन्युफैक्चर, तो 26 है, 27.6 से 6 रुपीज में सेल कर रहा है। हाउ मच प्रॉफिट, इट इज गोइंग टू बी 1.6 ओवर 26 इंटू 100, दैट विल बी गिव्स यू द राइट आंसर। सो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 16/26 इंटू 10 कर लेते हैं, इंटू 100, राइट। दिस गोइंग टू बी कैंसिल आउट, दैट गोइंग टू बी 16, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 8/13 इंटू 10, राइट। सो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 6 पॉइंट समथिंग, हाँ 6 पॉइंट समथिंग समथिंग इज द परसेंटेज, राइट। 6.12 आई थिंक समथिंग 125 will be the right answer. So this will be the answer for this particular question. Again ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम, जैसे कि आपका आंसर भी मतलब कैलकुलेट करने में इजी हो आपको, और ऑप्शंस नहीं है। अगेन यू गाइस गोइंग टू गेट द ऑप्शंस ना, तो अगर एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, यू कैन डू दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशंस वेरी इजीली, right? Again na, if you have any doubt guys, again I'm again telling you this thing, the same things na, just so that you can like let me know in the comment section. Definitely I will going to get back to you, right? So I think this will be the last question in the session, right? So let's read the question, guys, all of you. After giving a discount, after 20% discount, the shopkeeper earns 30% profit. Then find his profit percent if he will gives 25% discount on the same article, right? Again, it's a very easy question. Discount का पार्ट है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, तीन चीजें हमें कवर करनी थी, और तीनों से रिलेटेड मैंने बेसिक से क्वेश्चंस ले लिए हैं। जाओ प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस गाइस, राइट। बेसिक्स की क्लियरिटी हो जाएगी, एंड डेफिनेटली आई एम 100% 110% श्योर इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करेंगे डाटा एनालिसिस के चैप्टर में, राइट। नाउ लेट्स सी, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, मान लो कि कोई 100 रुपए की चीज थी, दैट इज सोल्ड ऑन लाइक डिस्काउंट। अच्छा ऐसे कर लेते हैं, प्रॉफिट कितने का है, 30% का प्रॉफिट है, तो मान लो 100 की चीज 130 में बेची गई है, राइट। अच्छा डिस्काउंट कितने का दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है आपका 20 का, तो डिस्काउंट हम इस पे देते हैं, राइट। डिस्काउंट हम इस पे देते हैं। अच्छा इसका रिवर्स प्रोसेस करके देखिए क्या, डिस्काउंट एक बार ऐसे कर ले, अच्छा ऐसे कर लेते हैं इसको ना थोड़ा, क्योंकि देखो यहाँ से कर तो ऐसे भी सकते हैं। 130 है ना, 130 को आप करोगे इज गोइंग टू बी, क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया है कितने का, 20% का, तो लिखोगे आप 80, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग अराउंड दिस मच नंबर। तो ऐसे करने से अच्छा है कि डेसिमल में आए, इससे अच्छा हम क्या करें, डेसिमल में आने से अच्छा क्या करते हैं कि हम कर लेते हैं कि मार्क प्राइस को ले लेते हैं 100, राइट। और डिस्काउंट कितने का दिया है आपने, डिस्काउंट दिया है आपने 20% का, तो हो गया प्राइस 80, राइट। और प्रॉफिट कितने का कमाया है आपने, 30 का, तो ये होगा 80/130। 130, अच्छा बात घूम फिर के वहीं आ गए, तो अगेन डिस्काउंट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन दैट कैन बी डन इजीली एज वेल। डेसिमल पॉइंट में आंसर आ रहा है, दैट्स व्हाई आई फील की रेदर देन लाइक फाइंडिंग द राइट आंसर, यू शुड बी नो अबाउट दिस। ये जो डिस्काउंट होता है वो तीन चीजों पे चलता है, सीपी, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस, राइट। सो अगर हमें डिस्काउंट चाहिए होता है तो वी कैन मूव फ्रॉम द मार्क प्राइस टू सेलिंग प्राइस। अगर मार्कअप की बात करें तो मार्कअप इज गोइंग फ्रॉम द सीपी टू मार्क प्राइस। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट गोज फ्रॉम सीपी टू सेलिंग प्राइस, राइट। अगेन दिस इज अ सर्कल, कंप्लीट सर्कल गोइंग ऑन, और दोनों का मतलब एक ही, चाहे आप यहाँ से कैलकुलेट करो चाहे आप यहाँ से कैलकुलेट करो, आंसर इज गोइंग टू बी कम, राइट। सो अगेन ना, अगेन वी आर गोइंग टू गेट इन अ डेसिमल प्लेसेस, रेदर देन फाइंडिंग दैट पर्टिकुलर आंसर, you should know how to solve, how to deal this type of question, that will be done our
work, right? So thank you guys, thank you so much for this watching this particular video. If you have any doubt, any query related to this, please do let us know in the comment section. We definitely reach to you, and we will clear your doubts, right? Thank you so much guys, thank you for giving your time, and thank you for watching this video. And if you are watching this video for the very first time, please do like, subscribe the channel, and have a nice day to all of you, right? Thank you.